نون لیگ کے لوگ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر وہ آج پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ووٹ کی عزت نہیں کرتے تو آگے ان کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر نون لیگ آج اپنے موقف پر اسی طرح جس طرح فوجیوں کی وہ جو یوں کر سمجھے کہ وہ اعلی کار بنی ہوئی ہے اس وقت، نون لیگ کا تو یہ آخری سمجھ لیجئے کہ حکومتی دور ہے۔ اس وقت نون لیگ بالکل اسی راستے پر ہے جس طرح مشرف کے دور میں جو چودھریوں والی جو کاف لیگ تھی وہ تھی۔ نون لیگ نے اپنے لیے وہی راستہ چنا ہے۔ آج ٹویٹر پر جو بات یا معاملہ یا جو بحث مجھے سب سے زیادہ نظر آئی وہ تھی مفتاح اسماعیل کے حوالے سے۔ کل مختلف ٹی وی چینلز پر بھی وہ دکھائی دیے، ایک جگہ تو وہ روتے ہوئے بھی نظر آئے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح عمران خان دور میں ان کے ساتھ غیر ضروری طور پر نہ صرف زیادتی ہوئی بلکہ عمران خان کو بتایا گیا، عمران خان کی اپنی کابینہ کے لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ زیادتی نہ کریں آپ، لیکن انہوں نے مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو یہ کہہ کر ان پر مقدمہ چلانے اور جعلی مقدمہ چلانے کی حامی بھری بلکہ تاکید کی کہ یہ ان کی سیاست کے لیے ضروری تھا۔ اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت آج جو ٹویٹر پر مجھے نظر آیا، حماد جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے، اور پی ٹی آئی کی سابقہ کابینہ میں بھی شامل تھے، انہوں نے ان کو لکھا، مفتاح اسماعیل کو، یہ لکھنے کی بجائے کہ جی معذرت چاہتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ جو آج زیادتیاں ہو رہی ہیں یا جو الیکشن میں 2 نمبریاں ہوئی ہیں اس کی بھی تو آپ مذمت کریں۔ یہ ایک خاص طریقہ کار ہے، یعنی پی ٹی آئی کا ایک خاص طریقہ کار ہے یہ، اور پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگوں کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ فوراً لیبل کرتے ہیں دوسروں کو۔ یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ 2018 میں دھاندلی کی گئی تھی فوج کی موجودگی میں اور اس کی طرح ابھی دوبارہ کی گئی، وہ کہیں گے کہ اس وقت ٹھیک تھا اب غلط ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ 2014 میں فوج کی آشیرواد سے پاکستان میں ایک حکومت گرانے کے لیے عمران خان فوج کے ایک اعلی کار بنے، وہ نہیں کہیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جان بوجھ کر پاکستان میں عدالتیں استعمال کر کے فوج نے ایک حکومت گرائی تھی اور عمران خان اس میں شامل تھے اس سازش میں، یہ نہیں کہیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ آج جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی تو مذمت کریں کیونکہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ جو ماضی میں زیادتی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک تھی۔ یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بنیادی اصول چھوڑ دیں گے تو پھر آپ انسانی حقوق کا رولا نہیں ڈال سکتے۔ انسانی حقوق کی بنیادی ایک اصول پر قائم ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی درست راستے پر ہیں نا تو آپ کو اس راستے کی مذمت کرنا پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ایسی ہی بدترین دھاندلی 2018 کے انتخابات میں بھی ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ 2018 والے انتخابات کی دھاندلی کو تو جائز سمجھا جائے، اس انتخابی دھاندلی کو ناجائز سمجھا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو اصول کے ساتھ کھڑا ہے وہ یہ کہے گا کہ 2018 میں بھی ناجائز کیا، فوج نے پاکستانی عوام کے نقطۂ نظر کو سمجھنے یا ان کی رائے کو ماننے کی بجائے عمران خان کو انسٹال کیا 2018 میں، اور اب دوبارہ سے پاکستان میں پاپولر ووٹ عمران خان کے ساتھ تھا۔ عمران خان کو حکومت دینے کی بجائے انہوں نے پھر سے پاکستان میں ایک غیر منتخب قسم کی ایک سوچ اور حکومت وہ نافذ کر دی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ عوامی رائے کی بجائے فوجی آشیرواد سے حکومتیں بناتے ہیں تو پھر وہ حکومتیں عوامی خدمت کرنے کی بجائے یا عوامی حقوق ان کی حفاظت کرنے کی بجائے وہ عسکری حقوق یا عسکری جرنیلوں یا اشرافیہ کے حقوق کی حفاظت میں لگ جاتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی جو حکومت ہے گو کہ اس کو لایا اس طرح گیا ہے کہ جی پاکستان عمران خان برباد کر دے گا، پاکستان میں فاشزم سے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اگر پاکستان کو اس وقت قومی اور مذاکرہ کرنے والی یا مکالمہ کرنے والی حکومت نہ دی گئی تو یہ بربادی ہو جائے گی۔ تو اس لیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ پاکستان کے عوام کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، یہاں پر بھی 2 چیزیں ہم ہمیشہ مکس کر جاتے ہیں۔ عاطف توقیر عمران خان یا عمران خان کی سیاسی جماعت یا عمران خان کے سیاسی نظریے سے اختلاف نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ اس کا بھرپور اظہار بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عاطف توقیر کی سوچ پاکستان کی عوام پر نافذ کر دی جائے۔ ذاتی طور پر ہم عمران خان کو عوامیت پسند رہنما سمجھ کے یا ان کے نظریے کو
नजरिया समझ के हम उसका रद्द पेश करेंगे, उसकी मजम्मत भी करेंगे, उस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन ये तनकीद, ये इख्तलाफ, ये पाकिस्तान के अवाम के राय के हक छीनने की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो अवाम है, आखिर में ये मुल्क उन्हीं को देना पड़ेगा आपको। अगर आप उनको मुल्क नहीं देते तो फिर ये जमहूरी उसूल खत्म हो जाएगा। अगर आपने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को जमहूरी अंदाज से चलाना है, तो फिर इसका कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप पाकिस्तान में जमहूरी रास्ते को ही आप चाहे समझें। फिर समझ लीजिए, दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप भारत में हैं और आप मोदी हुकूमत या बीजेपी के नजरिए से इख्तलाफ करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान में अवाम वोट दें और आप उस वोट को मानने से भी इनकार कर दें। ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। हमारे यहां मिक्स कर देते हैं, पीटीआई के दोस्त अक्सर ही मिक्स कर देते हैं कि अगर आतिफ साहब, अगर आप इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, इसका मतलब आप अवामी राय नहीं मान रहे। नहीं भाई, अवामी राय अपनी जगह पर है, अवाम की राय अपनी जगह पर है, और इमरान खान की सियासत पर तनकीद अपनी जगह पर है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये किसी सूरत इनको मिक्स ना करें। बात यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान के नजरिए या जमात पर इख्तलाफ है, उसके साथ ही ये भी इतने ही जोर से कहने की जरूरत है कि पाकिस्तान में अगर आप जमहूरी रवैये या जमहूरी राय, उसकी अहमियत को समझने से इनकारी हैं, या फौजी जर्नैल ये तय कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हुकूमत किसकी होगी, तो उसका नतीजा क्या निकलना है? वही निकलना है जो इमरान खान के दौर में निकला है, वही नतीजा भी निकलना है। एक ही तजर्बा बार बार करने से नजरिया या नतीजा तब्दील नहीं होता। आज के दिन हामिद मीर साहब ने फ्रीडम हाउस की वो रिपोर्ट लगाई हुई है, जिसमें पाकिस्तान में फ्रीडम हाउस ने कहा कि जो आज़ादी राय का या आज़ादी सहाफत का जो इंडेक्स है, या सहाफ़ियों की जो जिंदगियां हैं, वो खतरात का शिकार हैं। इमरान खान के दौर में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पहली दफा किसी सिविलियन को आज़ादी सहाफत के लिए दरिंदा करार दे दिया था, और पाकिस्तान उस वक्त कोई 13 दर्जे नीचे गिरा था। हालांकि पाकिस्तान की उससे पहले यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भी कोई रेटिंग अच्छी नहीं थी, यानी गालिबन पाकिस्तान 145 पे था, लेकिन इमरान खान के दौर में पाकिस्तान 159 पे चला गया। पीडीएम के दौर में गो के उसमें 7 दर्जे बेहतरी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान 151 152 नंबर पे है। ये यानी इंतहाई बेशर्मी बल्कि बेगैरती की बात है कि आप एक जमहूरी मुल्क का आपने नाम रखा हुआ है, और आपके यहां जो आजादी सहाफत है उसी की इजाजत नहीं है। जमहूरियत तो बेस ही इस पर करती है साहब कि लोग अपनी राय का इजहार कर सकें। अगर लोगों की राय का इजहार ही नहीं हो सकता, अगर प्रेस फ्रीडम इंश्योर नहीं है, तो फिर कौन सी किस तरह की रह गई कोई जमहूरियत? तो इस तरह इस वक्त बात यह है, पीटीआई के लोगों से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते किसी उसूल के साथ खड़े हो। साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो इस वक्त नून लीग और दीगर, उनके होते कि वो जमहूरियत के साथ खड़े हो। इस वक्त जरूरी है कि पाकिस्तान में लोग जमहूरी सोच और खास तौर पर मुकालमे की सोच पर आमादा हों, इख्तलाफ के लिए जगह निकालें, और जर्नैलों को मुल्क की किस्मत तय ना करने दें, क्योंकि अगर आपने जर्नैलों को मुल्क की किस्मत तय करने का हक दे दिया तो फिर मुल्क से जमहूरियत इसी तरह खत्म हो जाएगी जिस तरह इस वक्त खत्म है। पाकिस्तान में इस वक्त मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पीटीआई के बेशुमार कारकुन हैं। अगर भाई किसी ने 9 मई में वाकई कोई शामिल है, किसी ने जुर्म किया है कोई पुरतशद्दुद वाक़े में, उस पर साफ शफाफ मुकदमा चला जाए, उसको सजा दी जाए। लेकिन ये क्या हो सकता है कि बेशुमार लोग हैं जिन पर अब तक मुकदमे ही नहीं चल रहे, अब तक कोई 1 साल हो गया है, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। बेशुमार मुकदमात हैं जो मासेस के खिलाफ कटे हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहे। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। अगर जिन खवातीन की बेल कानूनी हक है उनको तो बेल दी जाए। बेशुमार लोग हैं जिनकी बेल हक बनता है, उनको बेल नहीं दी जा रही। इस रवैये से तो मुल्क जमहूरी नहीं हो सकता। नून लीग के लोग जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे, उनको समझ में आना चाहिए कि अगर वो आज पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के वोट की इज्जत नहीं करते तो आगे उनकी कोई सियासत नहीं है। ये समझ लीजिए कि अगर नून लीग आज अपने मौके पर इसी तरह जिस तरह फौजियों की वो जो यूं कर समझिए कि वो आला कार बनी हुई है इस वक्त, नून लीग का तो ये आखिरी समझ लीजिए कि हुकूमती दौर है। इस वक्त नून लीग बिल्कुल उसी रास्ते पर है जिस तरह मुशर्रफ के दौर में जो चौधरियों वाली जो काफ लीग थी वो थी। नून लीग ने अपने लिए वही रास्ता चुना है। इसलिए मेरी राय में अगर आप जमहूरियत के उसूल के साथ हैं तो पाकिस्तान में जमहूरी आजादियों और शहरी जमानतों इन पर कोई समझौता ना करें।
किसी भी सूरत में, ये किसी भी हाल में अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे, आप फौजियों और जर्नैलों उनके हुकूक की हिफाजत में लग जाएंगे, तो इसका नतीजा फिर यही निकलेगा कि पाकिस्तान में ना सिर्फ जमहूरी इंडेक्स गिरेंगे बल्कि पाकिस्तान में मजमूई जमहूरी हालत वो खराब होगी। इमरान खान ने जहां करप्शन किया है उस पर साफ शफाफ मुकदमा चला के उसको सजा देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया है तो सियासी मुकदमात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जानबूझकर सियासी मुकदमात में नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ये कोई बात है कि जी आपने फलां डायरेक्टर के पैसे नहीं लिए थे, तनख्वाह नहीं ली थी तो उस पर सजा, यानी जब सजा देने भी आते हैं ऊपर जर्नैल तय करते हैं, ऐसे सजाएं दी जा रही होती हैं। तो मेरी राय में जहां किसी ने जुर्म किया है, नवाज शरीफ ने जुर्म किया है, उस पर एक शफाफ मुकदमा चला के उसको सजा दी जानी चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है उसको कोई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बचत नहीं मिलना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सियासी मुकदमात चलाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मिफ्ता इस्माइल और शायद खाकान अब्बासी जैसे लोगों पर खाम में अपने सियासी फायदे के लिए आप मुकदमा चलाना शुरू कर दें और आप उसमें शामिल हैं। यानी जितने भी ये इस वक्त जितने भी लोग हैं, इनको इंसानी हुकूक की बात करते हुए जरा सी शर्म तो आनी चाहिए। जो लोग अपने दौर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को न सिर्फ जस्टिफाई करते रहे बल्कि ग्लोरीफाई करते रहे, उनको आज शर्म तो आनी चाहिए कि जब वो कम से कम ये तो कहें कि हमने गलती की है, सर माफ कर दें हमें। वो तो कह रहे हैं ठीक किया था हमने, वो तो चोर है, वो तो फला है, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं एसी निकालूंगा। वो इस चक्कर में लगे, मैं अभी भी वहां से नहीं निकले हैं बाहर। वो अभी भी उसी रास्ते पर है। वही फाशिस्ट किस्म की सोच है जो इस मुल्क में उन्होंने नाफिज करना है, और हमसे वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। भाई हम आपके साथ आपकी सोच के किसी सूरत साथ नहीं खड़े हो सकते। आपके साथ ज्यादती हो रही है, हम इसलिए आपकी आवाज हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आपने जुर्म किया, आपको जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने जुर्म नहीं किया, आपको किसी सूरत सजा नहीं मिलना चाहिए। सादा सी बात है। पाकिस्तान की अदालतों को जर्नैली आशीर्वाद से चलने की बजाय पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना चाहिए। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की आवाम की राय इमरान खान के हक में है, जो कि है, इस इंतखाबात में हमने देखा है, तो उसका एहतराम होना चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं है। तावक्ते के आप कोई और रास्ता चुन लें। आप ये कहें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, फिर तो और बात है, फिर हम ताकि आपसे लड़ें। आप ये कहें कि हम इस वक्त पाकिस्तान के आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जर्नैलों के नुमाइंदे हैं, बात कीजिए ना ताकि हम आपसे लड़ सकें। आप ये कहें कि पाकिस्तान में हम दस्तूरी जमानतों को नहीं मानते, तो कहिए फिर ये, ताकि हम आपसे लड़ सकें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम जमहूरी हुकूमत हैं और आप जमहूरी उसूल मानने से इनकार कर दें। आपकी राय क्या है, यहां इस वीडियो के नीचे अगर आप लिखेंगे तो उस पर गुफ्तगू होगी, और गुफ्तगू ही होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।